big breaking news coming in. We are learning that shocking details have now emerged from the ashram horror case involving Chaitanyanand Saraswati case. It has now been revealed that the very first complaint reached the university administration through a letter and email which was sent by a former student, an Indian Air Force Group captain. The officer flagged repeated incidents of misconduct by Swami Chaitanyanand Saraswati, who is now facing grave allegations of molesting and harassing over 30 female students. According to the FIR, the Swami sent sleazy late-night messages and even making inappropriate videos. Worse, female staff members, including senior teachers and in fact the associate dean, are also accused of forcing girls to comply with his advances, pressuring them to delete evidence and threatening academic consequences. Secret cameras were in fact allegedly installed in girls' hostel, and students from economically weaker backgrounds were called to Swami's quarters late at night. We are also learning that female students were threatened with withholding degrees and documents if they resisted the messages or in fact the sexual advances which were made by Swami. 32 statements so far have been recorded as fear only grips the campus and students call for urgent justice in this matter. That's the big breaking news of the hour coming in, ladies and gentlemen. This is a shocking revelation as far as that ashram horror case involving Chaitanyanand Saraswati is concerned. Speaking of the revelations that News9 has picked up in this big breaking news is that very first complaint reached the university administration through a letter and an email which was sent by a former student who is now an Indian Air Force Group captain. The officer flagged repeated incidents of misconduct by Swami Chaitanyanand Saraswati. This man, the accused Swami, is now facing grave allegations of molesting and harassing over 30 female students. Till yesterday, we were bringing you the numbers of 17 female students. Now it has mounted to 30 female students. Now, as per the FIR, the Swami sent sleazy late-night messages and even made inappropriate videos of the female students. In fact, the shocking revelation also suggests that the female staff members, including senior teachers and associate dean, were also involved with Swami. They have been accused of forcing the girls to comply with the advances which were made by Swami Chaitanyanand Saraswati. These staff members and senior teachers, associate dean, they pressure these poor students to delete the evidence and also threatened them with academic consequences. They said that the students' documents will be withheld. They will have to face challenging consequences if they decide to open their mouth or reveal anything out there. The revelation also suggests that secret cameras were allegedly installed in girls' hostel and students from economically weaker backgrounds were called to Swami's quarters late at night. My colleague Vivek Sharma is joining us live on the broadcast to provide us more details. Vivek, ये जो नई जानकारी सामने निकल के आ रही है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन्ड है. हमें एक एक करके बताइए कि पहले तो स्वामी जी का पता कुछ चल पाया है, क्योंकि कल तक हमें ये पता था कि वो कहीं हैं, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा. उनके आश्रम की भी सर्च हो चुकी हैं. काफ़ी बड़ी चीज़ें सामने निकल के आई है. क्या आप हमारे दर्शकों को वो भी बताना चाहेंगे? देखिए, बात कीजिए तो लगातार दिल्ली पुलिस की टीमें जो है वो बाबा की तलाश में लगी हुई है. स्वामी कहाँ छुपे बैठे हैं, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है. 5 राज्यों में दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो गई हुई है और वहाँ पे छापेमारी लगातार की जा रही है. करीब 300 के आसपास अगर बात करें तो पुलिस के जवान जो है वो इस मामले में लगे हुए हैं. जो सीनियर अधिकारी हैं वो बारीकी से इस मामले की तफ्तीश में नजर आ रहे हैं, जाँच करते हुए. और सूत्रों के मुताबिक जाँच में कई बड़े खुलासे भी निकल के सामने आए. जाँच में ये भी निकल के सामने आए कि बाबा पर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि वो EWS कोटे की जो लड़कियाँ होती थी, जो छात्र
छात्राएं होती थी उनका शोषण किया करते थे और लगातार उनको परेशान किया करते थे। आरोप ये भी है कि वो बाकायदा ऋषिकेश जो है वो छात्राओं को लेके गए थे, वहाँ पे उन्होंने छात्राओं को परेशान किया था। तो स्वामी पर जो है उस पर लगातार काफ़ी गंभीर आरोप जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी बताया गया है कि जो इस संस्थान के अंदर कमरे थे वहाँ पर बाकायदा जो है गुप्त कैमरे लगाए गए थे सिक्योरिटी के आधार पर। तो चैतन्यानंद स्वामी पर काफ़ी गंभीर आरोप जो है वो लगे हैं, जिसके आधार पर लगातार दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। आरोप ये भी लगाए गए हैं कि छात्राओं को विदेश भेजने के नाम पर भी उनका शोषण किया जाता था। उसके अलावा निजी रूम जो है वहाँ पर छात्राओं को बुलाया जाता था, जहाँ पर उनके साथ छेड़खानी होती थी, साथ ही उनका शोषण होता था। इसके अलावा छात्राओं को बाकायदा अश्लील मैसेज भेजे जाते थे, जो नॉर्मल मैसेज भी होते थे और व्हाट्सएप के द्वारा भी मैसेज जो है वो भेजे जाते थे। तो लगातार पुलिस जो आरोप लगे हैं उसके आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। स्वामी कहाँ छुपा बैठा है, इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। कई पुलिस जो है पुलिस की टीम रेड कर रही है। तो जल्द ही इस मामले में उम्मीद जताई जा रही है कि चैतन्यानंद स्वामी की गिरफ्तारी होगी, जिसके बाद कई खुलासे होंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो ये संस्थान है वहाँ पर 3 वार्डन बताई जा रही हैं जो इस स्वामी के इशारे पे चलती थी। आरोप उन पर यह लगा है कि वो इन छात्राओं को स्वामी कमरे में ले जाती थी। तो इस पूरे आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। जो वार्डन है उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं, जो छात्राएं जिन्होंने शिकायत दी है उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। तो लगातार अब दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है और पुलिस आने वाले समय में कुछ और बड़े खुलासे भी कर सकती है। तो सूत्रों के मुताबिक देखा जा रहा है कि काफ़ी गंभीर आरोप जो है वो इस स्वामी पर लगते हुए नजर आ रहे हैं और उसी को लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। विवेक, अगर आप हमें बता सके जिन वार्डन्स का आपने नाम लिया, इसके अलावा जो स्टाफ मेंबर्स थे, एसोसिएट डीन की भी उनके साथ मिले रहने की जानकारी सामने निकल के आ रही है। क्या उन्हें हिरासत में लिया गया है? क्या उनसे कुछ पूछताछ या उनका इन्वेस्टिगेशन किया गया है? उसमें क्या डिटेल सामने निकल के आई हैं? देखिए, बात की जाए जो चैतन्यानंद स्वामी के साथ काम करने वाले लोग थे, यानी कि बात की जाए वो 3 वार्डन डीन की अगर बात कर रहे हैं उनकी, तो इन लोगों से जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने पूछताछ की है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो भी इस इन्वेस्टिगेशन में जांच के दायरे के अंदर आएगा उससे बाकायदा पूछताछ की जाएगी, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। सबसे पहले दिल्ली पुलिस के सामने ये चुनौती है कि इस मामले के हर एक पुख्ता सबूत जुटाए जाएँ, जिसके आधार पर इस स्वामी पर शिकंजा जो है वो दिल्ली पुलिस का कसा जा सके। तो गंभीर आरोप जो हैं उसके आधार पर लगातार जांच पड़ताल कर रही है पुलिस की टीम। कई टीमों को लगाया गया है जो यहाँ पर इस संस्थान में भी अंदर जाकर पुलिस पूछताछ करती है। उसके अलावा जिन लोगों से जरूरत होती है उनसे पूछताछ की जाती है। तो किन किन लोगों के इशारे पर ये सारी चीज़ें हो रही थी, इस स्वामी के इशारे पर कौन कौन लोग काम कर रहे थे, जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सत्य हैं, सारे मामले को लेकर जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है।